को वार्म वेलकम है जो ये सेशन के लिए स्पेशल टाइम निकाल के आए। आई एम थैंकफुल टू द अमित सर, हमारे एमडी सर, सीईओ सर एंड एटॉमी इंडिया फॉर गिविंग दिस मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस ब्यूटीफुल presentation of world class product health supplement Hemohim. So basically myself, Dr. Yogesh Khandalkar. I am practicing in Pune since almost 16 plus years, and I am a consultant orthopedic trauma surgeon, sports injury specialist, and orthopedic rheumatologist. I passed my MBBS in 2004. I completed my DOR, DNB, and MCH Orth. Plus, I had done fellowship in orthopedic rheumatology, and I had done fellowship in sports injury also. I was lucky to head the team for National Kickboxing and Hockey Championship, which was held in 2021 at Pune, at Balewadi and Major Dhyanchand Hockey Stadium. So I was fortunate enough to work with Mr. Dhanraj Pillai, Padma Shri Dhanraj Pillai, who is a national hockey champion. Everybody knows him. And I'm treating many sports injury patients and trauma patients and all other things. And basically, I'm an open-minded person. So when this Atomy came to my table, so I was not reluctant to get knowledge about it. And once I got the beautiful knowledge of Atomy products, and basically these are health supplements, I am fascinated with it, and I'm using it like anything now. So basically these are all health supplement, and this is an informative training session. This is an education lecture, you can say, or education information. This is not an doctor advice. Let me clear you first. So कोई भी इसको आप ऐसा मत बोलना कि ये मेरी एडवाइस है. दिस इज एन एजुकेशन सेशन, ये ट्रेनिंग सेशन है. उसको ट्रेनिंग सेशन के तहत ही लेना आप, और कुछ भी आपको लगे तो आपके डॉक्टर्स एक्सपर्ट से कंसल्ट करना. दैट इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट एंड डिक्लेरेशन. सो स्टार्टिंग विद दिस हीमोहिम. So I think we should go ahead, na sir. बहुत सारे लोग join हो चुके हैं, right? जी जी, yes sir, you can continue. Yes. So everybody knows about the hemohim word. Hemoglobin everybody knows. All over the world everybody knows about the hemoglobin. Hem and globin, जिसमें रहता है iron, और globin यानी protein. Okay. So word hemoglobin has come. Now Atomy has launched this hemohim. So hemo again stands for the blood, or you can say iron part of the blood, and him means in Korean language it's a strength. Okay, so basically let me clear, this is an research product of South Korean government venture company, that is Atomy. So this is not at all an private company, it's a government venture company, and it has came in India in 2020. In the November, everybody knows it, and this product is used all over the world since 2009. So again, it has 16 plus years is used, and testimonials and reviews and everything. Okay, so I take what him as though it's Korean word strength. Him you can label it as a hemopoietic, I for immune, and M for modulation. That's for my personal perception of this heme. Basically, you know about the Atomy. This is an R&D company. अच्छा, हिंदी दीपक जी. ओके, मैं हिंदी में बात करता हूँ, सॉरी. सो ये जो हमारी कंपनी है वो 2009 से काम कर रही है, और ये गवर्नमेंट वेंचर कंपनी है, और बेसिकली ये हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, तो इसमें R&D और R&D होता है. ये आप सबको मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ. कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आप हेल्थ सप्लीमेंट या ड्रग रहेगा जिसके पीछे एक बहुत बड़ी R&D सिस्टम रहेगी, वो बहुत ही इफेक्टिव रहता है, और उसी को पेटेंट मिलते हैं. तो लेट मी क्लियर यू, दिस hemohim हैज़ ऑलमोस्ट 23 patents across the globe. So can you imagine, for getting one patent, you have to fight a lot, you have to do good research, you have to spend money, and then this patent happens. तो पेटेंट आपका आता है बहुत सारे मेहनत के बाद में, ताकत के बाद में, पैसा डालने के बाद में, रिसर्च के बाद में. तो सबसे बढ़िया जो हमारा ये हीमोहिम आया कैसे, इसको मैं 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. बेसिकली जैसे हमारा इसरो और नासा है, वैसे साउथ कोरिया का कैरी है.
कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो कैरी के तहत जो 3000 हमारे वहाँ के साइंटिस्ट थे और 1500 पीएचडी होल्डर्स थे, उनको जो रेडिएशन के साइड इफेक्ट हो रहे थे, उसके लिए साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने डॉक्टर चो, जो हमारे एक लीडिंग वहाँ के साइंटिस्ट है, पीएचडी होल्डर है और उनका बहुत बड़ा योगदान है रिसर्च में रिगार्डिंग कैंसर, उनको हेड बनाया और उनके साथ जो टीम बनाई लगभग 27 लोगों की, उनके हाथ में $5 बिलियन देके उनको कहा गया कि भाई 10 साल में आप ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करो जो हर्बल प्रोडक्ट रहेगा, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा और वो लेने के लिए इजी रहेगा। तो लेने के लिए इजी रहेगा यानी हमारा लिक्विड फॉर्म इज़ द बेस्ट फॉर्म टू टेक। आप कभी भी बीमार रहोगे या कुछ भी रहोगे, आप सॉलिड फूड नहीं खा सकते, आप लिक्विड फूड इजीली कंज्यूम कर सकते हो, राइट। सो इन्होंने लगभग 8 साल रिसर्च करके, हंशंस करके, जिसमें हमारे हर्बल प्लांट्स आते हैं और वो सबका रिसर्च करके एक ज़बरदस्त कॉम्बो बना के, इट इज़ एन बॉटनिकल मिक्स लिक्विड पैकेट। सो लेट मी क्लियर, ये आपको सबको बताना चाहता हूँ, ये कोई भी ड्रग नहीं है, कोई भी आप इसको ड्रग बोल के बताना मत। दिस इज़ एन प्योर हेल्थ सप्लीमेंट। सो आई रिपीट, दिस इज़ एन प्योर हेल्थ सप्लीमेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पेशेंट्स को और मेरे टीममेट्स को कि जैसे रॉकेट को बूस्टर इफेक्ट दिया जाता है, वैसे ही अपने एटॉमिक के पेटेंटेड हेल्थ सप्लीमेंट्स अपने ट्रीटमेंट में या हमारी बीमारी अच्छा होने में बूस्टर इफेक्ट देते हैं। तो आप सबको पता है कि आज हम बहुत सारे चीज़ों से सराउंडेड है। हमको पता है फास्ट फूड का ज़माना चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, रेडिएशन के साइड इफेक्ट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके जो अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ से भी रेडिएशन आता है, मोबाइल से भी रेडिएशन आता है, बाद में पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन और रेडिएशन, बाद में इन्फेक्शन, ये जो चीज़ें हैं वो हमारे इम्यूनिटी को वीक करती है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी वो इंसान हेल्दी, ये आप सबको पता है। तो अमित सर नेक्स्ट स्लाइड आप फॉरवर्ड करेंगे। सो इसके पहले वाला सर, इसके पहले वाला। सो आप देखोगे कि ग्लोबली कोई भी कंट्री में जाओ आप, सबको पता है कि इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। इसीलिए आप देखोगे तो हम भारत में हम अलग अलग काढ़े लेते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिंजर खाते हैं। ये सब का पर्पस क्या है? तो एशियन ज़माने से, पुराने ज़माने से हम सबको पता था कि हमारी इम्यूनिटी यानी डिफेंस सिस्टम अगर अच्छी रहेगी तो ही हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, अच्छा लाइफ जी पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी लाइफ। अगर हम बार बार बीमार पड़ने लगे और बार बार ट्रीटमेंट लेने लगे तो वो गोलियों के साइड इफ़ेक्ट भी हमारे बॉडी पे होते हैं। तो कभी ना कभी तो कोई बीमार पड़ा ही रहेगा। ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जो बोल सकता है कि मैं एक बार भी ज़िंदगी में बीमार नहीं हूँ, मैं एक बार भी मोबाइल नहीं यूज़ किया, मैं एक बार भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया। तो ये सब का कंबाइन इफेक्ट क्या होता है, हमारे बॉडी में जो कैंसरस और एबनॉर्मल सेल्स है उनको गति मिलती है और वो हमारे बॉडी में फैल जाते हैं। दुनिया में आपने देखा कि कैंसर का प्रमाण बढ़ चुका है, लेकिन भगवान ने हमको एक सिस्टम दी है जिसको बोलते हैं हम कैंसर सप्रेसर जीन। जो कैंसर सप्रेसर जीन्स रहते हैं उसके वजह से हमारे इसमें आपको जो कैंसर के सेल्स है वो ऊपर आ नहीं पाते। आई थिंक मेरी आवाज़ क्लियर है सर? कुछ रिप्लाई आया कि आवाज़ नहीं आ रही है? एम आई ऑडिबल सर? यस सर, हाँ, आई एम ऑडिबल ना? यस। तो कैंसर सप्रेसर जीन्स जो है ये बहुत सारे चीज़ों के वजह से हमारे इसमें दिक्कत करते हैं। और एक बार जैसे किसी का इनहिबिटरी कंट्रोल निकल गया और एबनॉर्मल सेल्स आगे बढ़ गई तो बॉडी में फैल जाती है। सो व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज एन एबनॉर्मल एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द सेल विच इज अनकंट्रोल्ड एंड विच गोज ऑन इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस, ऐसा बोला जाता है। तो वो चीज़ ऐसी है कि जिसको एक बार छूट गई तो वो टेररिस्ट जैसी फैल जाती है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो पूरे दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैंसर, और उसी के तहत जो रेडिएशन का साइड इफेक्ट होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये हीमोहिम लाया गया। और ये जब कॉमन पब्लिक में यूज़ किया गया तब ऐसा देखा गया कि बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है और कुछ पेशेंट्स के रिजल्ट्स है जिसमें डायबिटीज़, किडनी, लीवर में भी लोगों के प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट देखी गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्यूनिटी। अभी इम्यूनिटी आपकी रहती कहाँ से? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ अमित सर। हमारी जो इम्यूनिटी रहती है वो हमारे अलग अलग WBC, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं,
और जिसको हम सोल्जर्स इन एक्शन बोलते हैं, उसके तहत होती है। उसमें रहते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, बहुत सारे प्रकार रहते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है जो ग्रैन्युलोसाइट फॉर्म में रहता है, जिसको बोलते हैं एनके सेल्स, यानी नेचुरल किलर सेल्स। आपके नाम में ही सब कुछ है, भगवान ने दिए हुए नेचुरल किलर सेल। ओके, तो इसको मैं Z+ सिक्योरिटी समझता हूँ मेरे पर्सनली लेवल पे। तो एनके सेल्स इज लाइक अ Z+ सिक्योरिटी। और जो बॉडी की स्कैवेंजर सिस्टम है, जिसको हम साइटोकाइंस बोलते हैं, यानी मैं उसको समझता हूँ अपनी इंडिया की रॉ। जो कोई भी बॉडी में गड़बड़ है, एबनॉर्मल सेल्स है, कैंसरस सेल्स है, उसको जाके लेबल करने का काम ये साइटोकाइंस करते हैं। और साइटोकाइंस लेबल करते हैं, हमारी Z+ सिक्योरिटी जाके उसको ठोक देती है, यानी खत्म कर देती है। राइट। सो जैसे टेररिस्ट को ये पूरा मार देती है, वैसे दिस एबनॉर्मल एंड कैंसरस सेल्स आर लाइक टेररिस्ट इन आवर बॉडी। वो अगर ज़्यादा बढ़ गए तो आपका अलग अलग प्रकार के कैंसरों का आप क्या बोलते हैं उसको, हामी हो जाते हो। आपका ब्लड से लेके, बोन मैरो से लेके, लीवर से लेके बहुत सारे कैंसर्स है, उसमें भी ये दिक्कत पैदा करता है। दूसरा आता है हमारा फ्री रेडिकल्स। ओके, ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं हमारे बॉडी में? तो फ्री रेडिकल्स जगह जगह पे जाके आपकी इम्यूनिटी को डैमेज करते हैं। और फ्री रेडिकल्स आते कहाँ से है? बाहर से और अंदर से। हम ही उसके जिम्मेदार है। आज पोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी का बहाव, बाद में हमारा खाने का लाइफस्टाइल, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा लाइफस्टाइल, जिसको मैं आजकल बोलता हूँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। उसके वजह से आपको आती है ओबेसिटी, बीपी, डायबिटीज़, इसके वजह से। और आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और आप बार बार बीमार पड़ने लगते हो। तो उसके लिए क्या करना है? हम तो नेचुरल फूड खाते हैं। कोई बोलेगा डॉक्टर साहब आप तो बोल रहे हो ये करो वो करो, हम तो अच्छा फूड खाते हैं। तो फूड में भी आप देखोगे तो आजकल अडल्टरेशन है। हमारा जो खेती होता है वो रासायनिक खादों का यूज़ करके होता है, पेस्टिसाइड का यूज़ करके होता है। तो ऑर्गेनिक सब जगह पे नहीं मिलता है। मैं डॉक्टर होके भी खुद आइडियल न्यूट्रिशनल फूड खाने का सोचा। रोज मैं सुबह शाम खा नहीं पाता, हर एक का शेड्यूल आज बिजी है, हर एक के पास टाइम नहीं है। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में उतना न्यूट्रिशन भी जाता नहीं है, और उसके वजह से फ्री रेडिकल्स और ये जो एबनॉर्मल सेल्स है उसको स्टिमुलस मिल जाता है। जैसे ये स्टिमुलस मिल जाता है, ये इतने फास्ट फैलते हैं कि इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उसको कैंसर बोलते हैं। ओके, और बहुत सारे लोगों को आप देखोगे तो उनको एडिक्शन रहता है, सिगरेट्स है, बाकी की चीज़ें हैं। उससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और आपको पता है जैसे ही ये हमारे कोई बैक्टीरिया बॉडी में घुस जाता है तो हमारे डिफेंस सिस्टम काम करने लगती है। उसमें मैक्रोफेजेस हम बोलते हैं, यानी जो न्यूट्रोफिल्स के 3-4 एक साथ आके एक बड़ी सेल बनती है, वो उस पर अटैक करती है, उसको एंगल्फ करती है और उसको नष्ट कर देती है। तो ये हमारा हुआ बेसिक इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, मैंने बताया। अभी आप बोलोगे कि ये हीमोहिम का हमको लेना क्यों ज़रूरी है? मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है यार। देखो, आपने देखा रहेगा कि कुछ कैंसर्स है वो कुछ लोगों को जन्म से होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। कुछ कैंसर हमारे एडोलेसेंट या एडल्ट एज में आते हैं, और कुछ एल्डरली एज में आते हैं। तो आपने देखा रहेगा कि कभी-कभी आप देखोगे 50 साल तक बंदा अच्छा है, 55 में, 52 में उसको कैंसर हो गया। 30 साल तक अच्छा है। और कल ही हमने एक शॉकिंग न्यूज़ हमारे महाराष्ट्र में आया, जिसमें प्रिया मराठे करके मैडम है हमारी, जो मराठी एक्ट्रेस है, शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कैंसर। इट वाज अ वेरी बुरी चीज़ थी हमारे लिए कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए उनके तक, और वी लॉस्ट द गुड सोल। तो ये ऐसे हमारे जो ब्रेन है, टैलेंट है, अच्छे लोग हैं, ये कैंसर की वजह से जा रहे हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास है हीमोहिम। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। तो हीमोहिम करता क्या है, ये मैंने आपको रेडिएशन का बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड। हीमोहिम करता क्या है, ये आपका बोन मैरो में जाके एनके सेल का जो प्रमाण है वो 3 गुना बढ़ के देता है। जैसे मैंने बोला, आप एनके सेल को Z+ सिक्योरिटी पकड़ो, अगर मैं Z+ सिक्योरिटी को 3 टाइम्स बढ़ा दूँ और स्कैवेंजर सिस्टम को भी 3 टाइम्स बढ़ा दूँ, तो क्या होगा? जो नेचुरली मेरे बॉडी में 1 है, 1 से 3 हो जाएंगे। जो कुछ एबनॉर्मल कैंसर सेल्स है उसको जाके वो पकड़ेंगे, एंड दिस एनके सेल्स को
will go and kill them and engulf them and finish them. So मेरे को अगर मेरी खुद की इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, अगर मेरे घर में किसी को भी कैंसर है तो मैं उसको ज़्यादा लिए प्रोन हूँ। और कुछ लोग बोलेंगे हमको तो 3 पीढ़ियों से पता नहीं है। भाई 3 पीढ़ियों से कैंसर जीन कैरी नहीं होते, आपके दादा परदादा और उसके ऊपर वाली पीढ़ियाँ भी उसमें रहेगा तो आपको पता नहीं रहता है। तो इसी के लिए जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमारा एक्सपोजर बढ़ता है अक्रॉस द वर्ल्ड। जब बच्चे रहते हैं, ज़्यादा घर में रहते हैं, तो धीरे धीरे जब हम बाहर के एनवायरनमेंट में आते हैं, वी आर प्रोन टू ऑल दीज कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट मैं बोलूँगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हमने एनके सेल्स का प्रमाण ही बढ़ा दिया और साइटोकाइन्स का प्रमाण बढ़ा दिया, तो हमारे पास S-400 जैसा एक सिस्टम बनेगा। जैसे देखिए, हमने ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे आपको मिसाइल्स आए, बहुत सारे आए। S-400 था, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया इंडिया का। सो आई विल टेक दिस हिमोहिम लाइक S-400 सिस्टम फॉर आवर बॉडी, जो आपका डिफेंस बढ़ा देगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा और इम्यूनिटी को बैलेंस भी करेगा। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, 8 साल लगे हैं, $5 बिलियन डाले हैं गवर्नमेंट ने इसको डेवलप करने के लिए। BNH कोलमार और कैरी का, कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये स्पेसिफिक वेंचर बन के निकला हुआ प्रोडक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। तो ये आया कहाँ से और कैसे आया? देखो, कंडीशन क्या था, हर्बल प्रोडक्ट्स चाहिए, उसके साइड इफेक्ट नहीं चाहिए। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें जो कॉम्बिनेशंस आए, उसमें जो 100 मैंने बोला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आए, उसमें से ये 3 हर्ब निकल के आए, एंजेलिका गिगास, सिनिडियम ऑफिसिनाली एंड पायोनिया जापानिका। तो आपको और आपके फ्रेंड्स को ये क्लियर चाहिए, जो कुछ आप ले रहे हो, किसी को सजेस्ट कर रहे हो हेल्थ सप्लीमेंट, इट इज 100% हर्बल। तो आपके दिमाग में ये डाल लो कि हर्बल है। अभी आप बोलोगे वो तो लाल कलर का दिखा रहे हैं और खाने के बाद थोड़ा मीठा भी लगता है, तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स में जाके देखोगे तो उसमें एक हनी का और कॉर्न सिरप का भी थोड़ा प्रमाण है। आप जाके पीछे पढ़ो इंग्रेडिएंट्स में, आपको समझ में आएगा। प्यूरिफाइड वाटर के साथ ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, पायोनिया जापानिका, सिनिडियम ऑफिसिनाली और एंजेलिका गिगास। अभी जो बोन मैरो है, हमारा बोन मैरो है ना, ये आपका ऐसी चीज़ है जहाँ पे रहती है स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स क्या करती है, जैसे हम बॉडी की जो पहली सेल होती है उसको कहते हैं स्टेम सेल्स, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के बाद में जो बनता है वो, उसी के वजह से हम जिंदा है। और उसी के इसमें आपका कोड भरा हुआ रहता है, आपका आंखों का कलर, बालों का कलर, आपको डायबिटीज़ कब होगा, सबको होगा, दैट ब्यूटीफुली मैं बोलूँगा इम्प्रिंटेड इन दैट स्टेम सेल्स। तो जो बोन मैरो में स्टेम सेल्स रहती है, उसको भी जाके ये हिमोहिम स्टिमुलेट करता है। तो हमारे अच्छे सेल्स है, जो बेसिक सेल्स है, डिफेंस सेल्स है, उसके साथ अगर स्टेम सेल्स आ जाए तो आपका ये थोड़ा सा एंटी एजिंग इफेक्ट भी लाता है। समझ में आया? तो स्टेम सेल क्या करता है, रीजनरेटिव प्रोसेस करता है। जो हमारी मूल पेशी है, जो स्टेम सेल्स है, वो हमारे बॉडी में जो जो खराबियाँ है उसको रीजनरेट करती है। ओके, और आपकी ताकत बढ़ा देती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देती है और उसको बैलेंस करती है। तो हमारा हिमोहिम बोन मैरो में जाके काम करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। तो इसी के बाद में ये जो 3 की पॉइंट्स है हिमोहिम के, आप याद रखना, इट एक्टिवेट्स द एनके सेल, it creates the cytokines and activates the immune cells also. So natural killer cells created in bone marrow are activated directly, destroy harmful cells in the body, जो मैंने आपको बताया था। बाद में cytokines is released by cells of the immune system to help regulate the immune response, जो मैंने बोला हमारा scavenger system। ओके, और activates the immune cells mean क्या? Immune cells are activated to improve the defense mechanism of human body. Okay, so ये सब हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स और उसके तहत आया हुआ है, कोई भी हम हवा में चीज़ नहीं बात कर रहे। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, हर कंट्री के 27 कंट्रीज़ में ये चल रहा है। FDA के अप्रूवल्स है, दिस इज़ US FDA अप्रूव्ड, और इसका US FDA पेटेंट नंबर भी है। या आपको पता नहीं रहेगा तो या मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो भाई ये हिमोहिम किसको लेना चाहिए? तो मैं इसको बोलता हूँ 9 साल के ऊपर से लेके आप कितने भी एज को ये हिमोहिम दे सकते हो। हिमोहिम क्या है?
हीमोहिम को मैं बोलता हूँ कलयुग की संजीवनी, या मैं बोलता हूँ ब्रह्मास्त्र जैसा इफेक्ट करता है, और आपका जो रूटीन ट्रीटमेंट है उसको ये बूस्टअप करता है। आप किसी को भी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, किसी पेशेंट्स को, फ्रेंड्स को ये मत बोलना कि आपका रूटीन ट्रीटमेंट बंद कर दो और आप हीमोहिम पे शिफ्ट हो जाओ ना। उनको बोलने का आपका ट्रीटमेंट चालू रखो। अलॉन्ग विद दिस, इफ यू ऐड हीमोहिम एज ए हेल्थ सप्लीमेंट, आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव आएगा। ओके। और इसमें एक बड़ा कंसेप्ट रहता है बायो अवेलेबिलिटी, यानी मैं जो कि चीज़ खा रहा हूँ वो एब्सॉर्ब होके एट द एंड ऑफ डाइजेशन जो कॉन्सेंट्रेशन सेल के पास जाता है उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अगर कोई प्रोडक्ट की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी तो उसकी परिणामकारकता बहुत बढ़िया रहती है, जो एंटीबायोटिक में हम देखते हैं। तो अभी आप देखोगे तो हीमोहिम इज अ वेज प्रोडक्ट, और हमारी बॉडी नेचुरली भगवान ने वेज के लिए बनाई हुई है। जैसे कोई सब्जी आप अच्छे खाते हो तो उसकी बायोलॉजी अच्छी रहती है। ये तीनों कंटेंट आपने देखे, ये हर्बल होने की वजह से इसकी ऑलमोस्ट 99% बायोअवेलेबिलिटी है, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे सेल्स तक जाता है वो अच्छी तरीके से जाता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहेगा या कुछ बाकी बीमारी रहेगी तो उतना नहीं रहेगा। या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, एडल्ट्स के, मेल और फीमेल में मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली दिस इज प्योरली रिकमेंडेड फॉर एडल्ट्स। तो इसमें आप क्या करना है, तो उनको सुबह एम्प्टी स्टमक देना है। एम्प्टी स्टमक देने से फायदा क्या होगा कि हमारा इंटेस्टाइन अच्छा रेडी रहता है अर्ली मॉर्निंग, और उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा होकर बायो अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया होती है। अभी आपको समझ में आया कि एम्प्टी स्टमक क्यों लेना है, और शाम को भी आप लोगे तो भी एम्प्टी स्टमक लेना है। तो इसको क्या करता है, ये आपकी एनर्जी लेवल बूस्टअप करता है। भाई जब मैंने ये खुद फर्स्ट टाइम लिया था, मेरे को रात को आया था ये मेरे पास पार्सल, और 10 बजे मैंने लिया। इतना एनर्जी मुझे फील हुआ, सुबह लगभग 3 बजे तक मैं सो नहीं पाया था। दैट्स द एनर्जी आई फील्ड विद दिस हीमोहिम सैशे। और इसका आप देखोगे, जिसका हम कहेंगे कि इम्यूनिटी वीक है, जिसको थकान आती है, कुछ काम करके भी उसको अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, एक्सरसाइज करके बेनिफिट नहीं मिल रहा है, एल्डरली पेशेंट्स है, बेड रिडन पेशेंट है, आईसीयू वाले पेशेंट्स है, बाद में स्पोर्ट्स वाले पेशेंट है, इनमें ये बहुत बढ़िया काम करेगा। और एक स्टडी इसमें किया गया जिसमें आप देखोगे तो वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया हम बोलते हैं, जो कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर पर रहता है उसको एक निगेटिव प्रेशर के तहत हम उसको रेस्पिरेशन कराते हैं। तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड जो निमोनिया रहता है, इसके हीमोहिम के वजह से आप प्रिवेंट कर सकते हो, ऐसा रिसर्च पेपर है, आप देख लेना जाके गूगल करके। सो इट कैन प्रिवेंट द वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया आल्सो। सो जो मैंने बोला कि यंग एज से लेके बुढ़ापे तक ये कलयुग की संजीवनी जैसा काम करता है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको कोई भी रूटीन ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है। ये मैं फिर से आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इसको क्या करेंगे, आप जब किसी को बताएंगे तो उसको ये क्लियर करना कि ना कोई ये ड्रग इंटरेक्शन करता है, ना कोई ड्रग से जाके ये भिड़ता है, आपके रूटीन सिस्टम में डिस्टर्बेंस करता है, ना आपके इम्यूनिटी से खिलवाड़ करता है। बेसिकली जो मैंने बोला, 2 चीज़ें बोली, ये इम्यूनिटी अच्छी करता है, दूसरा मैंने बोला बैलेंस करता है। तो अगर आपका इम्यूनिटी बैलेंस करेगा तो एबनॉर्मल इम्यूनिटी का काम नहीं करेगा, ये आप हाईलाइट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और इसको आप जैसे लेते हो, तो इसका एक हमारा जो स्टडी हुआ कोरिया में, तो उसमें ऐसा पता चला कि अगर आप 4 महीना इसको लेते हो तो 98% चांसेस है कि आपको 1 साल कैंसर से प्रोटेक्शन मिल सकता है। ओके। सो ये स्टडी बोला गया है। तो 4 महीना अगर इसको आप लेते हो सुबह शाम, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि आपका 98% तक कैंसर से प्रिवेंशन हो सकता है। तो भाई मैंने तो 4 महीने अभी ले लिया है, और लकीली अभी ये चैलेंज आ चुका है। सो आज ही हमारे एटॉमी इंडिया ने स्पेशल चैलेंज रखा है, जिसमें आप सुबह शाम हीमोहिम लोगे तो और सेल्फी अपलोड करोगे तो उसको एक ब्यूटीफुल गिफ्ट देंगे, वो अनाउंस करेंगे बाद में। तो हेल्दी इंडिया बनाने का जो हमारा मिशन है, हेल्दी इंडियंस एंड ब्यूटीफुल इंडियंस जो हमारा मिशन है, उसके तहत ये बहुत बढ़िया काम करेगा। अभी आप बोलोगे इसको रेकमेंड किसको करना है, तो भाई जिसको इम्यूनिटी सपोर्ट चाहिए, लाइक जिसको फिजिकली जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फिजिकल फटीग होता है, बाद में एल्डरली पेशेंट्स है जो बेड रिडन है, जो उठ नहीं पा रहे हैं, और
आईसीयू वाले पेशेंट्स है, जो कुछ कुछ पेशेंट में आपने देखा रहेगा कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब रहता है, नली से हमको खाना दिया जाता है। तो ये भाई सबसे ब्यूटीफुल चीज़ मुझे क्या लगी, ये लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से मैं सिरिंज में डाल के भी उसको पुश कर सकता हूँ और वो पेशेंट को दे सकता हूँ। बाकी क्या आप देखोगे तो कभी कभी गोलियां खाने में दिक्कत आती है, पेशेंट को तकलीफ होती है। तो हमारा जो हीमोहिम है वो लिक्विड बॉटनिकल मिक्स होने की वजह से इट्स वेरी इजी टू गेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एनी फॉर्म, बाय एनी मेथड, थ्रू ओरली। ओके, और अगर आप ये स्टार्टिंग से लोगे, मैं तो रेकमेंड करूंगा आप जैसे ही वोटिंग करने के लायक हो जाते हो, 18 साल के हो जाते हो, आप हीमोहिम चालू करना चाहिए। क्यों? अभी मैं बताता हूँ। आपको लगेगा भाई कैंसर तो 55 में आ गया, 50 में आ गया, 60 में आ गया। भाई कैंसर आता है 55 60 में, लेकिन शुरुआत उसकी पहले होती है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेरा आपने देखा मैंने बेसिक एमबीबीएस किया हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं और एज ऑर्थोपेडिक सर्जन कि ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी का टिश्यू बना है 25 के बाद में चालू होता है और हमको दिखता है 40s में। दूसरा एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ समझने के लिए। डायबिटीज़, लोग बोलते हैं मेरे को 40s में डायबिटीज़ आ गया। भाई डायबिटीज़ 40s में आता नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट करते हो इसलिए डिटेक्ट होता है, वो पहले शुरू होता है। आपने कभी चेक किया नहीं रहता, उस पर गौर किया नहीं रहता, आप इसलिए आप उसको डायग्नोज नहीं कर पाते। सो इट इज़ डिटेक्टेड एट द एज ऑफ 40। तो वैसा ही कैंसर का है, ये धीरे 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 आपके इम्यून सिस्टम को खराब करके कभी कभी साइलेंट किलर बन के आपकी वाट लगाता है। कुछ एग्रेसिव कैंसर रहते हैं जो आपको 1-2 साल में दिख के आते हैं, लेकिन कुछ ट्यूमर्स जो रहते हैं, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे 5, 10, 15, 20 साल में आपको दिखेंगे। तो आपके फैमिली के, आपके फ्रेंड्स की सेहत अच्छा रखना चाहते हो तो ये हीमोहिम इज़ अ नेसेसिटी इन टुडेज एरा। और हम थोड़ी बोल रहे भाई ये ड्रग है, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है, ये हेल्थ सप्लीमेंट है। आप अगर देखोगे प्रैक्टिकली तो आईसीयू में जाता है कोई पेशेंट तो रोज का खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपये है टेक्निकली, और ये आपका 1 मंथ का कोर्स आता है 15,000 रुपये में। तो भाई ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या कैंसर होने के बाद लड़ने में और बाकी खर्चा करने में मतलब है, बताओ आप। दूसरा आप देखोगे तो हमारे कैंसर का जो ट्रीटमेंट रहता है उसका खर्चा आप देखोगे तो हज़ारों रुपए से लेकर लाखों रुपए से तक जाता है, और हर किसी को ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मात्र 15,000 में अगर 4 महीना लेके यानी 60,000 रुपीज़ में अगर 1 साल आपका इम्यूनिटी बूस्टअप हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं बोल रहा हूँ 98% आपको कैंसर होने के चांसेस नहीं है। और जो बाकी के जनरल पब्लिक में जब यूज़ किया गया, डायबिटीज़, किडनी, लीवर में भी ये काम करता, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम सरप्राइज विद द रिजल्ट्स। मेरे पास एक माता जी आई थी 92 ईयर्स की, और वो बोल रहे, उनका लड़का बोला था सर अभी उसका पल्स नहीं लग रहा है, सांस चल रही है, रिफ्लेक्सेस नहीं, प्यूपिल अच्छे रिएक्ट नहीं कर रहे, डॉक्टर ने बोला घर पे लेके जाओ 24 घंटे में जाएगी। और उन्होंने घर पे लेके आ 20 एक लोग जमे हुए थे। हमारे एक मेरे टीम में डॉक्टर देशपांडे करके, उनको मुझे फ़ोन आया, बोले सर कुछ कर सकते क्या इसके लिए? मैंने बोला सर आप है ना उन लड़के को मेरे पास भेज दो। आई टॉक विथ हिम फॉर 10 मिनट्स, आई टोल्ड द बेनिफिट्स। तो उसने बोला भाई सर ये आप तो बराबर बोल रहे हो, ये कलयुग की संजीवनी ऐसा है, आपने सब बताया भी, यूएसएफडी नंबर, पेटेंट नंबर भी दिखा है, लेकिन मेरी मम्मी वैसे रहेगी तो क्या होगा? मैंने बोला सर जी मैं आपको आग बुझाने के लिए पानी दे रहा हूँ, पेट्रोल जैसा काम नहीं करेगा, आप एक बार लेके देखो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ही दोपहर में जाके मैंने बोला भाई वो 92 ईयर्स की है, उसको अभी स्वॉलोइंग दिक्कत रहेगा, आइडियली ये डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका कंडीशन ही माता जी का ऐसा था कि शी वॉज नॉट एबल टू हैव दिस लाइक अ सेमी सॉलिड थिंग जो हीमोहिम का है। तो मैंने बोला आप थोड़ा उसको डाइल्यूट करके पानी में डाइल्यूट करके दीजिए ताकि वो स्वॉलो कर पाए, बिकॉज शी इज़ नॉट अ नॉर्मल लाइक हम जो है वैसे। और फ्रेंड्स टू माई सरप्राइज उन्होंने शाम को आंखें खोली, दूसरे दिन नेक मूवमेंट चालू किया, तीसरे दिन माता जी खाना खाने लगी, चौथे दिन उठ के बैठी, 7वें दिन में वॉकर पे चलने लगी, और यू विल नॉट बिलीव 2 महीने में उन्होंने 93 ईयर्स का बर्थडे मनाया। आप देखिए कि ये एक हीमोहिम पेशेंट की जो जिंदगी जा रही थी उसको कहां से कहां लेके गए। जिनको अग्नि देने के हिसाब से दूसरे दिन 20 लोग जमे थे, वो 2 महीने बाद उनके बर्थडे के लिए सेलिब्रेशन के लिए जमा हुए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हीमोहिम। एंड
मैंने बोला था आपका जो ट्रीटमेंट है उसको कभी भी बंद मत करना, आपकी जो दवाई है उसको चालू रखना। आपका डायबिटीज़ था और सबसे बढ़िया चीज़ उसमें मैंने एक ऑब्ज़र्व किया, जो पेशेंट को बेड सोर था, वो भी इम्प्रूव हो गया। एज़ अ ऑर्थोपेडिक सर्जन और हम जब स्पाइन ऑपरेट करते हैं, जो ट्रॉमा ऑपरेट करते हैं, वी आर स्केयर्ड ऑफ बेड सोर्स, तो हम बोलते हैं भाई जल्दी से जल्दी बेड से निकालो, नहीं तो हम वाटर बेड या एयर बेड देते हैं। सो वो भी अच्छा हो गया सरप्राइजिंगली। दूसरा, मेरे पास एक शोल्डर फ्रैक्चर का पेशेंट था, आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपको मैंने बताया। टेक्निकली हम बोलते हैं 4 पार्ट फ्रैक्चर ऑर्थोपेडिकली क्लासिफिकेशन में, लेकिन लगभग उसका चूरा था, 7-8 टुकड़े थे और मसल भी फटा था। उसको मैंने शोल्डर का प्लेटिंग किया था और 2 मसल भी रिपेयर किए थे और 10 दिन बाद भाई साहब हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत कर रहे थे। ही वाज़ अ क्रोनिक ड्रिंकर और वो बोल रहा था सर मैं दारू के बिना रह नहीं सकता, ये कैसे चलेगा, कैसे हाथ ऊपर जाएगा। तो आई स्टार्टेड हिम विद द मिल्क थिसल ऑल्सो, जो आता है लीवर के लिए। न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी चालू किया मैंने और उसके साथ अपना हीमोहिम और 360 डिग्री चालू किया और हीमोहिम मैंने लगभग 4 महीना उसको चालू रखा। फ्रेंड्स, यू विल नॉट बिलीव, जो 10 दिन बाद बोल रहा था सर इतना ही 10-20 डिग्री हाथ जाने में दिक्कत आ रही है, 3 हफ्ते में 90 डिग्री अबडक्शन, यानी पूरा हाथ जिसको ऐसा बोलते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, 90 डिग्री अबडक्शन तक आ गया। सो दैट्स द ब्यूटी आई एम गेटिंग अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स इन एडल्ट्स। तो जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं और भी मेरे पास, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मैं ऑर्थोपेडिक रूमेटोलॉजिस्ट भी हूँ। तो रूमेटॉइड अर्थ, ये जो बर्थडे का दिखा रहे हैं सर फोटो, वो फोटो है ये माता जी का और यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली शी इज़ सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। तो दूसरा मेरे पास पेशेंट थे जिनका रूमेटोलॉजी के लिए एक एचसीक्यूर के ड्रग रहता है और बहुत सारे एंटी रूमेटिक एजेंट्स रहते हैं। तो अलॉन्ग विथ हीमोहिम, मोरिंगा, शिलाजीत और स्पिरुलिना भी मैंने चालू किया और 360 भी चालू किया। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि उनका साइनोवाइटिस कम हो रहा है, उनकी सूजन कम हो रही है और धीरे धीरे मैंने एचसीक्यू का डोज उनका एडजस्ट करते करते कम कर दिया। और जैसे ये 4 महीना हो गया, मैंने अभी उनको ट्रायल दिया कि एचसीक्यू अगर हम बंद करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद भी उनको फ्लेयर अप नहीं हुआ। फिर दूसरे कुछ एंटी रूमेटिक एजेंट्स रहते हैं जिसका लीवर पे साइड इफेक्ट नहीं रहता है, उसको मैंने ऐड करके उनका ट्रीटमेंट अभी चालू रखा है। सो दिस इज द सिस्टम वेयर हीमोहिम कैन बी यूज्ड एज अ ट्रांजिशन हेल्थ सप्लीमेंट टू चेंज द ट्रीटमेंट ऑल्सो। समझ में आपको मेरे को क्या कहना है? तो नॉट ओनली दिस इज एन एडिशन टू द रूटीन ट्रीटमेंट, बट आपको अगर दूसरे सिस्टम में शिफ्ट करना है, ट्रीटमेंट में शिफ्ट करना है पेशेंट को, तो ये हीमोहिम का आप सहारा लेके सेफली उसको एक जगह से दूसरी ट्रीटमेंट पे शिफ्ट कर सकते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हीमोहिम। ओके, और 9 साल के ऊपर को मैंने बोला है, टेक्निकली इस पे एडल्ट लिखा है, तो यू गो विद द whatever written on the supplement that is for adults। तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा एडल्ट्स को ही देना। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बेसिकली मैं जैसे बोला, वोटर आप हो जाते हो 18 साल के ऊपर, तब आप चालू करना उसको। और मैंने देखो संधिवात के पेशेंट में देखा, मैंने ट्रॉमा के पेशेंट में देखा, मैंने आईसीयू के पेशेंट में देखा, बाद में एक पेशेंट को मैंने अभी चालू किया, उसको सोरियासिस भी है, तो लकीली उसमें भी इंप्रूवमेंट मुझे दिख रही है। दो आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऐसा मतलब नहीं कि सिर्फ ऑर्थो ही देखेगा, मैं बेसिक एमबीबीएस है। तो उसके साथ मैंने ये ऐड किया। बीच में मैंने एक लिगामेंट सर्जरी की थी एसीएल का, तो उसको देखा, मैंने बोला भाई ये आपके रूटीन ट्रीटमेंट के साथ ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी करेगा, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। तो उसको भी इम्प्रूवमेंट हो चुका है और सरप्राइजिंगली उसके चेहरे पे जो काले धब्बे थे, पिंपल्स थे, काले दाग थे, वो भी इम्प्रूव है। So this is an additional benefit I am getting along with routine orthopedic treatment। किडनी के पेशेंट में भी मैंने एक इम्प्रूवमेंट देखा है। एक नेपाल का पेशेंट था मेरा, उसका 5.6 क्रिएटिनिन था, तो लगभग रूटीन ट्रीटमेंट के साथ, उसको ऑर्थोपेडिक इश्यूज भी थे, उसके ट्रीटमेंट के साथ मैंने हीमोहिम ऐड किया, तो उसका सरप्राइजिंगली मुझे फ़ोन आया, सर आपने क्या दिया पता नहीं, लेकिन मेरा क्रिएटिनिन 4.6 हो गया है 5.6 से। सो विद इन अ 1 month ही गॉट गुड इम्प्रूवमेंट। सो आई सेंड दिस हीमोहिम टू नेपाल, आई कुरियर्ड हिम, और उसमें भी बहुत अच्छा अभी रिजल्ट आ रहा है। और सबसे बढ़िया क्या चीज़ है भाई, आपको सोचना की ज़रूरत नहीं है। दिस इज एन हेल्थ सप्लीमेंट, डजंट रिक्वायर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ओके, इट डजंट इंटरफेयर विद द एनी ड्रग ट्रीटमेंट और इट्स इंटरेक्शन। बाद में कैन बी टेकन सेफली और लिक्विड फॉर्म में है, सैशे में है, और आप कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हो। मैं अभी जहाँ जहाँ जाता हूँ, पूना से बाहर जाता हूँ, बीच में आउट ऑफ इंडिया गया था, वहाँ पे भी मैं ये हीमोहिम लेके गया, because for me completing this 4 months was a good target and never miss single hemo in my 4 months। so ये ज़रूरी है।
और अभी चैलेंज आया है, अब तो आप ले लेना, मेरा ऑलरेडी कोर्स पूरा हो चुका है, एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप रिकमेंड करो कि जिसको 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 दिक्कत है, आप इम्यूनिटी से लेके, बॉडी एक से लेके, बाद में आईसीयू से लेके सभी जगह पे आप हीमोहिम रिकमेंड करो। दूसरा रहेगा आपके स्पोर्ट्स इंजरी वाले और स्पोर्ट्स वाले, स्पोर्ट्स एकेडमीज़ है, जिम वाले हैं, इनको आप हीमोहिम के साथ स्पिरुलिना वगैरह ऐड करोगे, तो जो मसल बनने की ताकत है, उसका एब्सॉर्प्शन है, उसकी इम्यूनिटी है, वो बहुत बढ़िया बनती जाएगी। आपने देखा रहेगा कि एक्सरसाइज करते-करते कुछ पेशेंट्स कोलैप्स हो गए जिम में, तो इनको ये हीमोहिम के साथ आप सप्लीमेंट के साथ रखोगे, शिलाजीत और स्पिरुलिना भी दोगे आप, तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट लाएगा। बाद में जो हमारी यंग जनरेशन है, क्रिकेट एकेडमीज़ है, फुटबॉल एकेडमीज़ है, इनको परफॉर्मेंस बूस्टर करके एडोलेसेंट पेशेंट्स में या अपने बच्चों में आप दे सकते हो अबव 17 और 18 ईयर्स। ओके, तो उनको ये बहुत बढ़िया बूस्टअप देगा ट्रीटमेंट में और उनके परफॉर्मेंस में। बाद में जो हमारे वर्कर्स है, हार्डकोर वर्कर्स है, जैसे आप देखोगे कि भाई आप रिपेयरिंग को देते हो कार, वहाँ के वर्कर्स हैं। बाद में हमारे अलग-अलग इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो ऑलरेडी पॉल्यूशन की जगह पे काम कर रहे हैं, उनको कार्सिनोजेन की ज़रूरत है, कार्सिनोजेन की वजह से प्रॉब्लम होता है, उनको हीमोहिम की ज़रूरत है, उनको आप रिकमेंड कर सकते हो। आप उनके जो हायर अथॉरिटी है, उनको आप बोल सकते हैं अंडर सीएसआर एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप उनको अवेलेबल करके दो। तो हमारा जो मिशन है एटॉमी इंडिया का, हेल्दी इंडियंस एंड ब्यूटीफुल इंडियंस, उसके लिए ये हीमोहिम इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हेल्थ सप्लीमेंट, जिसका ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बढ़िया टर्न हो रहा है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा टर्न होने वाला हेल्थ सप्लीमेंट है और ये 27 कंट्रीज़ में अवेलेबल है और सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस के तहत आप किसी को भी ये आउट ऑफ द इंडिया भी दे सकते हो। मेरी बहन यूके में, तो मैंने उसको भी वहाँ पे अवेलेबल करके दिया है। सो आप नॉट ओनली इन इंडिया, यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो प्रिंसिपल है भारतीय संस्कृति का, वसुधैव कुटुंबकम, उसके तहत पूरे वर्ल्ड में जो आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स को, इनको रिलेटिव्स को ये रिकमेंड करो। आप उनको कुछ स्टडी दिखाओ, उनको रिजल्ट दिखाओ, यूएसएफडीए का अप्रूवल नंबर, पैटर्न नंबर दिखाओ और उनकी सेहत अच्छी करो, ताकि हमारा इंडिया एक शक्तिशाली और बलवान इंडिया बन जाए। अभी मैंने बोला था जिसके पास हीमोहिम है वो आप तैयार रखो, मैंने मेरा हीमोहिम तैयार रखा है। अभी हम लाइव हीमोहिम ले लेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज एन हीमोहिम, ओके। और इसका आप ब्यूटीफुल पैकिंग देखोगे और इसको कट करना है सिर्फ, ओके। और इसको कितना इजी लेना है, जो नए लोग हैं उनके लिए, ये आप सिर्फ पाउच पी सकते हो। और इसको पूरा पूरा लेना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखना है। हम इंडियंस को पता है कुछ वेस्ट नहीं करना है। और सबसे बढ़िया जो प्लास्टिक है उसको ख़त्म करने के लिए आप इसको बाद में इसके अंदर डाल दो। सो जो पोल्यूशन है वो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट ख़राब ना करे ये। तो एटॉमी का कहाँ तक सोचना है, देखो कि इसका छोटा टुकड़ा भी एज ए पोल्यूटेंट ये पृथ्वी पे, धरा पे ना रहे, तो ये सिस्टम बनाया गया है।